Hi everyone, I am Vardha Sharma, editor Newsband, daily English newspaper of Navi Mumbai. Today we have with us Mr. Vishal Dolas, who is the corporator of ward number 108, which comprises of sectors 48 and 50 Seawoods, Navi Mumbai. He was the former chairman Sports and Cultural Committee, Navi Mumbai Municipal Corporation, and also former chairman A Ward Committee. Welcome, Mr. Dolas. Hi, ma'am. How are you? Mr. Dolas, first and the foremost question that we would all like to ask is that why did you think of joining politics and why Bharatiya Janata Party? Actually, it was not a part of my future plan. But as a resident of the ward number 108, there was nothing happening, and from last 10 years before I joined the social activities, there was nothing happening for the common people. Routine work was going on, and no vision was set up to resolve the local issues. And the mainly problem people was facing, that traffic, toilets, uh, lots of fees, unemployed youth, I think parking, and main thing was there was nothing happening to change the living standard of the local people. So I thought a change is required in these areas which I have mentioned. And so I decided to get into the social activities which are very useful for the people, and mainly I can set up the uh, things which I think which I can set up into their mind, that what I can do for this world, what is my vision, and what one youth can do. So earlier I started my career as a with a there is one organization which name is Sankalp Social Welfare Association. So I uh, formed that organization. I Many of the people joined this organization, and with the help of this organization, I have done lots of activity, tribal area, in the ashrams, Balagram ashrams, and also for the needy uh, students who doesn't have anything to learn in remote areas. So along with my team, I went to the several villages. I distribute there lots of laptop, computer. I think not more than, I think twice, thrice we have distributed. We have also conducted so many uh, uh, we can say that health free health checkup camp for the senior citizens. I think I have only one who have conducted more than 50 camp in a year. It was in there was, I think, every week, every Sunday we conducted it in that camp. We used to check up the diabetes, blood pressure, also ECG also for the mostly senior citizens. And I got lot of response. People like me started. Also, I in the several in my area there was so many chain snatchings and the things was going on. So I thought that I should keep watch on that peoples who are doing this, who were doing this. So I plan to that time to put CCTV camera every corner of the our area. So I think in 2012-13, I think more than 10 cameras uh, we uh, set up
In ward number 108? 108, 111 also. In nearby Gelot also, there was a camera. It has been set up by us also, by me also, Okay. me only. And I think uh, that start and the response which I got from the people, and people started believe that I can do something for this world. So I think that time lots of Pathanatya, lots of street dramas. I see. With the help of the street dramas, I have raised the issues of the cleanliness. That also there was so many topics which was uh, which people required in this area, and you know that ward number 108 and 111 is very close. Close. We don't have anything to like ward number 107, there is NRI colony. So for that people, there is a clubhouses, there is an entertainment park also. But in our area, there was nothing like that. So from last, basically from 10 years, the representative who was led earlier, no changes were made by him. So I stood up for that, and I I have belief in myself that I can do something for the people, and so I decided to went into the politics. As well as there is a reason that I saw the Mr. Ganesh Naik, who was earlier uh, the also guardian minister of this Navi Mumbai, and also he was minister of several departments. So I have experienced that there is a power, something to do the help. So we can help to the common peoples in the areas of the hospitals, in the for as well as admissions, for getting a job. So there is a post is required, there is a power is required, and with the help of the politics, Mr. Ganesh Naik is able to do this, and I have experience. I am witness of that. This thing was also in my mind. So I entered in the politics. I in 2015 election, I was in NCP earlier with Mr. Ganesh Naik, sir. You have been And with Mr. Naik throughout. throughout. Now also I am with Mr. Naik. Now And he's in BJP. he's in BJP. And the people has given me a chance, and I think people are I think more than happy that for what reason they have elected me. I have kept my promise. I kept my promise. The toilet issue was resolved. Parking issue is resolved. The road is widened. The garden which was there earlier, it was in the condition in that only 4 to 5 people can sit there. Only 4 and 5, you can say, kids play area was there. Only 4 5 equipment was there. More than instead of that, there was nothing to that we can enjoy, and we can sit there for more than a half an hour and 1 hour for more than that. So लॉकडाउन के समय मिस्टर डॉलर्स people faced lot of problems with regards to getting groceries and vegetables. आपने क्या क्या मदद की उनकी इस बारे में? मैम लॉकडाउन में हमने डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे. लोग बहुत डर गए थे. बहुत सारा उनके दिल में डर था कि कोरोना अगर हम लोग नीचे उतरे या नहीं उतरे, वेजिटेबल लाने जाए या नहीं जाए. और लॉकडाउन में सब बंद ही था. भी कहाँ सर्विस ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था ना. नहीं था, लेकिन कुछ कुछ कॉर्नर्स में लोग बैठते थे लाके, बट वहां पर भी लोग जाने को डरते थे. तो हमने हमारी जो मेरे कलीग्स है, मेरे फ्रेंड्स है, जो
मुझे प्यार करने वाले जो मेरे हमेशा के कलीग्स रहे हैं, उनके साथ में हम लोगों ने डिसाइड किया हम फार्मर से वेजिटेबल मंगाएंगे, पुणे, जुन्नर, नासिक से, और वो डायरेक्टली हम लोग सोसाइटी में एंटर करेंगे और उनको देंगे। तो हम लोगों ने वैसे प्लान किया, हमने वहां से वेजिटेबल्स मंगाए और जो रेट से हम लोग ने लिए वही रेट से हम लोग ने बेचे लोगों अभी को। सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम हुई है वो है इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। राइट। सो आपका उनके लिए क्या करना है? आई मीन, हाउ हैव यू ट्राइड टू हेल्प द पीपल, द कंज्यूमर्स? मुझे लगता है पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम लोग ये प्रॉब्लम उठाया था। लोग मेरे पास मुझे फोन करते थे कि इतना बिल आया, 10,000, 20,000, 15,000, 25,000। तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि जब कंप्लेंट्स रिसीव होना चालू हुआ, विद इन 2 days आई कॉन्टेक्टेड एमएसएमई पीपल, जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात की मैंने। पहले तो उनसे बात करने के बाद में उन्होंने मैंने उनको बोला कि लोग बार बार आ रहे हैं ये सब चीज इशू लेके मेरे पास, तो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव मेरे ऑफिस में भेजिए, उनका बिल रेक्टिफाई कीजिए और उनको बताइए क्यों इतना बिल आया हुआ है। अगर सही बिल सही नहीं है तो उसको रेक्टिफाई करके उनको वापस नया बिल दीजिए, या किसी का मीटर खराब है तो उसका मीटर रीडिंग आप करके दीजिए। तो मैं उस चीज में पूरा बहुत काफी डीप तक चला गया था। और उनका कहना भी था कि हमने एक साथ में बिल भेजा इसलिए लोगों को वो ज्यादा लग रहा है। बट मुझे लगता है कि एमएससीबी का भी इसमें बहुत सारा मिस्टेक था। लॉकडाउन में ही उन्होंने रेट्स बढ़ाया हुआ था, तो काफी कम भी था, 0.60 ऐसा कुछ उनका रेट बढ़ गया था, जो मुझे पता था। उस बारे में मैंने उस बारे में भी वहां पे डिमांड किया था कि आप ये जो रेट्स हो पीछे ले लो। पैंडेमिक सिचुएशन है और आप ऐसे सिचुएशन में जब लोगों के पास पैसा नहीं है, आप इसको कैसे रेज कर सकते हैं? तो रीडिंग्स भी बढ़ गई है, वैल्यू भी बढ़ गया था, रेट्स भी बढ़ गए थे। अभी भी वो सॉल्व नहीं हुआ है और जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में फिलहाल है। हम लोग ने उसके लिए आंदोलन भी किया था। एमएससीबी में हम लोग ने जाके उस बारे में आंदोलन किया था, उनका निषेध किया था और हमने डिमांड किया था बार बार कि इसको जब तक हम आप जो नहीं करेंगे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि अभी इसका रिलीफ होने वाला है। सभी क्षेत्र के लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा निकाला था, बहुत सारे धरने भी हुए हैं। शायद मुझे लगता है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए। अभी आपने बताया था कि you had, I mean, some of the vegetable vendors, they sell the vegetables on the roads, So encroachment is a very big problem in your node. Any step that you have taken or any measures that you have proposed to the civic body? या डेफिनेटली आई थिंक जब सिडको ने हमको ये जो हमारा सिडको एरिया जो है इस्टेब्लिश किया, जो कॉलोनी इस्टेब्लिश की, एवरी एरिया में सर्टन लोकेलिटी के लिए गार्डन, मार्केट, टॉयलेट्स, ये सब चीज़ों का उन्होंने अरेंजमेंट करके देना चाहिए था। बट इन माय वार्ड, ऑल्सो इन 111-108 जो बाजू के वार्ड से, एक भी वहाँ पर मार्केट अवेलेबल नहीं है, जो बेसिकली बिलोंग्स टू एनएमएमसी और गवर्नमेंट के है। ऐसा कोई भी मार्केट अपने यहाँ पर नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर सेलिंग द वेजिटेबल्स, vendors are doing their business on the footpath, on the street also. I have risen this issue, I think, very second Mahasabha of NMMC, and I asked uh, commissioner to resolve this issue as early as possible. Also in 2018 मुझे लगता है हमने एक उपोषण किया था। वो उपोषण में हमारी मांग थी कि हमको मार्केट के लिए प्लॉट दिया जाए। बेसिकली प्रॉब्लम इज दैट एनएमएमसी के पास में प्लॉट देने का अथॉरिटी नहीं है। सिडको ने अभी तक एनएमएमसी को सब प्लॉट हैंड ओवर नहीं किए हुए हैं और इसी की वजह से ये जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है।
बट मुझे लगता है कि 2018 में जो हमने उपोषण किया था वहाँ पे सकारात्मक रूप से हमारी बात हुई थी। उसके बाद में सिडको ने प्रोसेस में बहुत सारे प्लॉट हैंड ओवर किए थे, बट अभी भी सीड्स एरिया के लिए इंडिपेंडेंट मार्केट का प्लॉट अलॉट नहीं हुआ है। बट इन 2020 एनएमएमसी हैज पुट देयर ओन डेवलपमेंट प्लान टू अप्रूव। मतलब अगर ये डेवलपमेंट प्लान अप्रूव हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, तो जो प्लॉट हमने रिकमेंड किया हुआ है अल्टीमेटली डायरेक्टली वो एनएमएमसी के पास आ जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी मार्केट के लिए वहां पे प्लॉट प्रपोज किया हुआ है। तो 2015 से लेकर 2019 तक हम लोग वहां पे फाइट भी किया हुआ है, और ऐसे भी कुछ हम लोग ने प्लॉट्स वहां पे कंक्रीट करके रखे हुए हैं उसका कि लेवल करके कि फुटपाथ से बैठने से अच्छा जो वैकेंट प्लॉट है सड़कों के वहां पर उनको बिठाया जाए वहां पे वो लोग। बट प्रॉब्लम क्या है कि कोई जाता नहीं वहां। आप आप कितना फोर्स करेंगे, कितनी बार म्यूनिसिपालिटी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको बोलेंगे कि आप उनको यहाँ से उठाओ वहां पे बिठाओ। वहां पे बिठाने के बाद फिर से वहां पे वेंडर्स फुटपाथ पे आके बैठते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे सीरियस एक्शन लेने का जरूरत है एनएमएमसी ने। और उसमें कहीं तो मुझे लगता है कि ये जो फेलियर है वो इस एरिया में तो जरूर मुझे लगता है ये कंसर्न है बहुत। ये नवी मुंबई के लिए बहुत घातक है और उसी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अभी इन वेंडर्स के थ्रू प्लास्टिक बैग्स, थिन प्लास्टिक बैग्स जो कि बैंड हो गए हैं, यू कैन सी देम, they are being sold again. People are just using those plastic bags which was quite banned earlier, but these are going on in rampantly now. I think from January to March, in every town or in every ward of Navi Mumbai, there was action was taken up by the NMMC, and it was going on a huge level, large level पे वो action हो रहा था। बट ये पैंडेमिक सिचुएशन आने के बाद में सब थोड़ा सा अभी फिर से ठंडा हो चुका है। बहुत सारा चीज काम डाउन हो चुके हैं हमारे ऑफिशियल्स भी, बिकॉज वो सिचुएशन वैसा है कि लोगों के पास पैसे नहीं है फिलहाल कुछ भी। और ऐसे मौके पे ऐसे टाइम पे हम लोग कार्रवाई करते हैं या कुछ हम लोग यहाँ पे एक्शन लेते हैं तो शायद मुझे लगता है कि और भी वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन वेंडर्स की भी हो जाएंगी। और जो शॉपकीपर्स ने तो डेफिनेटली प्लास्टिक बैग नहीं बेचना चाहिए। उन्होंने जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है वही बैग्स उन्होंने देना चाहिए, उसी के थ्रू सर्विस देना चाहिए। आप कुछ लेकिन इस मुझे लगता बारे है कि में अवेयरनेस कर रहे हैं? बिकॉज क्या है, आई थिंक गलती कुछ नागरिकों की भी है। We do not follow the rules. I mean, only when there is some sort of action by the authorities, we follow those rules. So I think it is important that awareness is also spread regarding the menace. आई थिंक अवेयरनेस तो मुझे लगता है कि एनएमएमसी भी करती है, हम भी करते हैं। बट कोई भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन तभी होता है अगर उसको हम लॉ में कन्वर्ट करते हैं। अगर इस रिगार्डिंग कोई लॉ बनता है, ये ऑफेंस बनता है, ये ऑफेंस है करके ये साबित हो जाता है, तो ही वो चीज कंट्रोल में आ सकती है। अवेयरनेस तो हर चीज की होती ही है, एड आती है, टीवी में आते हैं, वहां पे पोस्टर्स लगते हैं। हम भी सेमिनार लेते हैं प्लास्टिक के बारे में अवेयरनेस के लिए। मैंने खुद एनएमएमसी ऑफिसर्स के साथ में कार्रवाई की है दुकानों में। मुझे पता है 2015-16 में मैं खुद जाके जहाँ जहाँ पे प्लास्टिक का ये ऐसा बिक्री हो रहा था एनएमएमसी के साथ में जाके हमने वहाँ पे छापे मारे हुए हैं। वी हैव कलेक्टेड सो मेनी बैग्स, तीन जो पॉलीथीन का जो बैग्स है वो हम लोग ने Thin plastic bags, वहां yeah. से निकाल, हाँ वो हमने निकाला है वहां से और उनको पैनलाइज भी किया है। बट क्या होता है जैसे आपने बोला कि ओनली इसका आप कितना भी अवेयरनेस कीजिए या कुछ भी कीजिए, जब तक लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा वो चीज का,
तब तक इसका पूरी तरह से इरेडिकेशन नहीं हो सकता है, मुझे लगता है। पार्किंग इज एन इशू आई थिंक ऑल ओवर नवी मुंबई। आपके राइट, एरिया में भी पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो हैव यू डेफिनेटली। सजेस्टेड और एनी मेजर्स दैट हैज बीन प्रपोज्ड टू टैकल दिस? या डेफिनेटली आई थिंक जब मैं 2015 का इलेक्शन लड़ रहा था, उस टाइम पे जो मेन इशू था हमारे यहाँ पर पार्किंग का था, ट्रैफिक का था। छोटे छोटे एरियाज में वेंडर्स बैठते थे, फुटपाथ पे, फुटपाथ बड़े थे। तो मैंने जैसे ही अ, मेरा चुनाव हुआ और जैसे ही मुझे मौका मिला, तो इन जनरल मीटिंग ऑफ एनएमएमसी वेरी फर्स्ट आई प्रपोज दैट कि जो भी फुटपाथ है उनका जो विड्थ है वो कम करके रोड को एक्सटेंड किया जाए। जहाँ पे 2 फुटपाथ है उनको 1 फुटपाथ की जाए, और जो बाकी एरिया जो है वो पार्किंग के लिए यूज किया जाए, बिकॉज सिडको ने कोई भी एडिशनल प्लॉट नहीं दिया हुआ है पार्किंग के लिए। और बेसिकली जो यहाँ का जो लोकेलिटी है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जब सिडको ने ये कॉलोनी बनाया था, 90% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन सिडको कंडीशंस। यहाँ पे 10% लोग जो है प्राइवेट अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो जो एरिया दिया हुआ है वहाँ पे ऐसा हो गया है कि लोग वहाँ वो टाइम पे सिडको ने वो चीज़ नहीं देखा, मिडिल क्लास लोग देख के उन्होंने कॉलोनी बनाया, तो पार्किंग का कोई भी वहाँ पे ऐसा कुछ बड़ा प्रोविजन नहीं हुआ था। तो हमको जो चीज़ हमारे पास है उसी में हमको कुछ प्रोविजन करना था, तो हमने वैसा प्लान किया, और समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मैंने मेरे यहाँ के फुटपाथ का जो 2 फुटपाथ है उसको एक किया, कहीं पर दोनों फुटपाथ रखे, उसका विड्थ कम किया। तो लोगों को थोड़ा रिलीफ मिला कि पहले जो तकलीफ होती थी, अभी रोड बड़े बड़े हो गए हमारे यहाँ के, पार्किंग भी हो जाती है उनकी बाहर ही हो जाती है एक साइड में। ऑड इवन का सिचुएशन हम लोग ने क्रिएट किया है। बहुत सारे लोग फॉलो करते, कोई नहीं फॉलो करते, बट मेनली फॉलो होता है। तो वो एक इश्यू है। और अभी लेटेस्ट जो आपको बताया मैंने कि लास्ट जनरल मीटिंग में मार्च में जो हुआ था, वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान जो हमारा बन रहा था, तो उसमें हमने मल्टी लेवल पार्किंग जो है उसको प्रपोज किया हुआ है, जो सेक्टर 50 का जो एरिया है वहाँ पे, जैसे अभी मॉल में होता है और कहीं काफी जगह पे होता है, कॉम्प्लेक्सेस में होता है। तो हमने वो प्रपोज किया है। अगर ये प्लान पास हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, तो मुझे लगता है विद इन 2-3 years ये प्रपोजल भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और लोगों को रिलीफ जरूर मिलेगा। तो अभी आपने बट बताया कि ज्यादातर जो लोग हैं इन योर नोट आर स्टेइंग इन सिडको बिल्डिंग्स मोस्टली। राइट, उसकी इनफैक्ट many of the सिडको बिल्डिंग्स आर इन वेरी बैड कंडीशन, काफी dilapidated स्टेट में भी है, एंड दे आर आल्सो रिसीविंग irregular वाटर सप्लाई। तो उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? उसके बारे में वाटर सप्लाई तो मुझे लगता है कि मोस्टली 98% आई हैव रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ मेनी ऑफ द सोसाइटीज। इन 2015 मुझे लगता है कि ऐसे गिने चुने 4 to 5 सोसाइटीज था जिनको ये इश्यूज प्रॉब्लम्स हो रही थी। आई वहाँ का किसी सोसाइटी का पाइपलाइन चेंज किया हुआ है हमने एनएमसी के थ्रू, नया पाइपलाइन डाला हुआ है। अभी लेटेस्ट भी हम लोगों ने 2-3 सोसाइटीज के लिए नया वाटर कनेक्शन डाला हुआ है। तो ऐसे इश्यूज मैंने सॉल्व किए हुए हैं मेरे टाइम पे, और मुझे लगता है एक आध सोसाइटी रहेगा जिसको ये प्रॉब्लम अभी हो रहा है, बट मोस्टली 99% आई हैव रिजॉल्व दिस इशू। रहा डिलेपिडेटेड बिल्डिंग का जो बात है, आई थिंक ये प्रॉब्लम तो काफी पुराना है। 2000 जब से 1998 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस कॉलोनी का, और मुझे लगता है कि 2005 और 2003 में ही ऐसे केसेस आने लगे कि स्लैब गिरना, जो हमारा स्लैब है उसका प्लास्टर गिरना, टूट के नीचे गिरना, सर पे गिर जाना किसी का, और बहुत सारा मुझे लगता है कि बहुत सारा एक्सीडेंट भी हुआ है इस वजह से। और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि ये इशू 2015 से मैं आने से पहले ही था। 2015 में आई फॉलो विद सिडको
बहुत सारा हम लोग ने मेजर काम भी करा के लिया हुआ है। जब मैं चुन के आया तो एक मेजर सर्वे किया था विद सिडको ऑफिशियल्स, और फिर हमने बहुत सारा एक ही टाइम पे एक एक सोसाइटी में 50-50 घरों की भी हम लोग ने रिपेयरिंग किया हुआ है सिडको के थ्रू उसका। और फिर मुझे लगता है कि 2018 में, जैसे आपको बताया हमने, मुझे लग आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्मॉल स्मॉल रिपेयरिंग। I wanted that Shudko should take responsibility, and Shudko should जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जो कॉलम्स है, जो पिलर्स है, जो बैडली उनको क्रैक्स गए हुए हैं, वो गिरने की स्थिति में है, उनका रिपेयरिंग जो है वो शिडको करे। और फिर हमने वो दिल में था ही कि ये छोटी छोटी जो स्लैब गिरने के बाद वो केस वाइज काम कर रहे थे, बट कितने दिन करेंगे ये लोग। और समझो इसका स्ट्रक्चर खराब होके अगर कोई बिल्डिंग ही गिर गया तो बहुत बड़ा कैजुअलिटी होगा। तो वो सोच के हमने 2018 में कुपोषण और आंदोलन किया सिडको में। 5 दिन ये चला उपोषण। मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा था वहां, और सिडको ने मुझे रिटर्न में लिख के दिया कि हम लोग जो जो टेनामेंट्स जिनका कंडीशन डिलैपिडेटेड है, खराब है, वी विल इंस्पेक्ट और वी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। ऐसा रिटर्न में उन्होंने दिया। उन्होंने चालू भी किया काम, 2-3 बिल्डिंग बनाया उन्होंने, रिपेयरिंग भी किया, और बीच में एक बड़ा एक प्रपोजल बनाया है वो पुटअप किया। बट लास्ट एमडी ने उसको आई थिंक रिजेक्ट किया हुआ है, बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया था उसका। तो बेसिकली मुझे लगता है कि डिलैपिडेटेड बिल्डिंग का जो है इसमें थोड़ी उलझी हुई है यहाँ की जो लोकेलिटी है कि एग्जैक्टली क्या करना है। रिडेवलपमेंट में जा नहीं सकते, 30 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, पूरी तरह C1 कैटेगरी में नहीं है, C3 कैटेगरी में है, जहाँ पे रिपेयरिंग जरूरत है। हम लोग को वो खाली करने की जरूरत नहीं है, हमको बिल्डिंग खाली करने की जरूरत नहीं है, हमको रिपेयरिंग बोला गया हुआ है। बट हम लोग यहाँ प्रॉब्लम इज दैट 30 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए तो हमको परमिशन नहीं मिलेगा रिडेवलपमेंट का। अलॉन्ग विद दैट पीपल आर नॉट सो कॉन्फिडेंट कि अभी तक जो प्रोजेक्ट नवी मुंबई में रिडेवलपमेंट के इतने फुल इसमें नहीं हुए मतलब लोग नहीं जा रहे हैं रिडेवलपमेंट के लिए। और वाशी में जो भी रिडेवलपमेंट चल रहा है वो भी हाफ हाफ स्टेज में चल रहा है। काफी सालों से लोग देख रहे हैं कि वहां पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। कोर्ट में अटका हुआ है, बिल्डर के पास अटका हुआ है। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज, और पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो छोड़ के किसी और जगह पे जाए। बेसिकली तो देखा जाए तो अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। निष्कर्ष नहीं निकला है, और मुझे लगता है कि ये जो इशू है वो जो लेवल में होना चाहिए था, सिडको शुड बी पनिश फॉर दिस, बिकॉज आपका विद इन क्या अ रोल है, 30। आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? फिर मैं आपको बताया ना, मैंने तो उपोषण किया, मैंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ है, और अभी भी आप देख रहे हैं, आप देखेंगे मैं अभी भी उपोषण का लेटर दे के आया हूँ उनको कि जो उन्होंने कार्रवाई बंद की है। मेरा वही बात था कि जो बिल्डिंग खराब हुई है आपकी वजह से, आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वहां पे, ये बहुत ही लो कैटेगरी का है। वहां पे बहुत ही जो भी मटेरियल यूज हुआ है, आप कह सकते हैं कि लो स्टैंडर्ड का यूज हुआ है। ये सभी बातें हमने सिडको में रखी, उन्होंने भी एग्री की ये बात। बट क्या है कि कॉर्पोरेटर का एक लिमिट रहता है, एक सर्टन इसमें, जुरिस्डिक्शन। और रिस्ट्रिक्शंस रहता है। नहीं, रिस्ट्रिक्शन तो कोई भी नहीं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, वी आर पीपल फिगर्स। तो मुझे लगता है कि हाँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हमारा जो आवाज है वो खाली उपोषण तक ही रहता है। उसके बाद में ये जो इश्यूज है वो स्टेट लेवल का है, महाराष्ट्र लेवल का है, बिकॉज सिडको इज अंडर वर्किंग इन द कंट्रोल ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो वहां से ये चीजें होती है। अभी अल्टीमेटली मैं नाइक साहब से इस बारे में बात कर रहा हूँ, और इसके बीच में क्या निष्कर्ष निकाला जाए बड़ा इश्यू है, और अभी से ध्यान देने की जरूरत। और अलॉन्ग विद दैट आई एम थिंकिंग, अभी हमारा प्रोसेस चालू है, हमने हाई कोर्ट में भी अप्रोच किया हुआ है। जो मुझे लेटर दिया था सिडको ने,
वो उससे मुकर गए, काम करना बंद किया हुआ है। तो ये हम लोग पीआईएल दाखिल कर इन हाई कोर्ट अगेंस्ट द शिडको। अभी लॉकडाउन के समय some of the schools have hiked tuition fees, school tuition fees, and the parents have been protesting against it. आपके भी नोट में कुछ schools हैं जो जहाँ पर बढ़ाया गया है, fees have been hiked and there have been protests. आपका इस बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है कि लोगों को प्रोटेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा मेरे वार्ड में। जब भी लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा सिचुएशन है, और मेरा फॉलोअप तो पहले से ही था ही पैंडेमिक सिचुएशन में, स्कूल के मैं टच में था रेगुलरली। मेरे एरिया में डीएवी स्कूल आता है, तो मोस्टली डीएवी स्कूल के जो प्रिंसिपल्स है, जो मैनेजमेंट है, फ्रॉम फर्स्ट डे जब पेरेंट्स को कॉल जाना शुरू हुए मार्च अप्रैल मंथ में फीस के लिए रिगार्डिंग, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि स्कूल आर आस्किंग फॉर अ फीस। तो सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल को बताया कि आप ये फीस नहीं मांग सकते हो। सो आई ऑल्सो आई वेंट टू द एनएमएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट and I given a letter to the educational officer regarding that school cannot ask fees in the pandemic situation. So school education department had released the letter to every school of Navi Mumbai that they should not ask the fees. लॉकडाउन में आप फीस नहीं मांग सकते। तो ऐसा लेटर उन्होंने निकाला, उसी टाइम पे उनका कॉल आना बंद हुआ। आफ्टर दैट जब लॉकडाउन खुल गया, धीरे धीरे खुल गया, उसके बाद में स्कूल वाज आस्किंग फॉर देयर एंटायर फीस, कोई हाफ फी मांग रहा था, हाफ फीस मांग रहा था। तभी भी हम लोगों ने लोगों के कंप्लेंट्स के आधार पे we approach NMMC, we also approach school principals, and we have requested you can take only tuition fees because आपका ऑनलाइन स्टडी शुरू है, आप इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं, आप दूसरा फीस नहीं मांग सकते। नो लैबोरेटरी फीस, नो एग्जाम फीस, नो अदर चार्जेस, नथिंग। तो स्कूल हैज आल्सो कोऑपरेटेड मी, उन्होंने तुरंत लेटर रिलीज किया और फिर ट्यूशन फी लेना ये किया। मेरे वार्ड के लोगों को तो मुझे लगता है ज्यादा सफर नहीं करना पड़ा। आपके वार्ड में there is a hospital which is being run by, I mean, started by Savla Trust, but is still not constructed. In fact, it is under construction since many years. और हमें मालूम है कि ये इशू आपने रेज किया है. So, what is the current status? First of all, that hospital is not in my ward. I see. It is in neighbor ward. But I took this issue because वो जो हॉस्पिटल का प्लॉट जो है वो मुझे लगता है सिडको ने वो सीव्ड एरिया के लिए दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि कोई भी बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है वो कोई छोटा वार्ड को देख के नहीं होता है, वो लोकेलिटी को देख के होता है। तो सीव्ड एरिया इज ह्यूज एरिया। So many of the people was thinking that I should raise this issue in Shidco, that उनको पता है कि अगर कोई इशू में हाथ में लेता हूँ तो they believe that I can reach to the another level. So मैंने वो रेस किया वो इशू। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि शिडको ने दिस वीक ओनली they have given notice to the Savla Trust that within a 30 days they should give they should put up a cause that इतना दिन वो हॉस्पिटल क्यों बंद है, क्यों स्टार्ट नहीं किया हुआ है। अगर वो इसका आंसर देने में विफल होते हैं, अगर उनका आंसर जो है वो वैलिड नहीं है, तो उनका जो प्लॉट है वापस लिया जाएगा ट्रस्ट से। और ऑल्सो आई हैव डिमांडेड दैट शिडको कैंसिल दिस डीड and this plot should be given to the NMMC that he can start general hospital there. I think hospitals इस समय तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है. We need more hospitals now. We don't have any hospitals in Seawoods. I think there are so many private hospitals there, but you know that key what are the charges they are taking up. Or also we have very close that Palm Beach is also there. So we all we know that the accident which took place, we can see every 2 days there is one accident. So it is very important to having a hospital closer to the highway area.
बहुत जरूरी हो जाता है कि समझो हम सीवुड्स के जो रेसिडेंट्स हैं उनको डीवाई पट्टी जाना पड़ता है, सावला हॉस्पिटल जाना पड़ता है, केरना हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और इमरजेंसी में पास में हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल रहना बहुत जरूरी है। जो इमरजेंसी के टाइम के जो प्रेशियस 15-20 मिनट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल होता है तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा लोगों के लिए। और मुझे बिलीव है कि ये जो सावला हॉस्पिटल है अगले साल तक स्टार्ट हो। अभी आपकी नोट में आई थिंक एनएमएमसी ने सीबीएसई बोर्ड, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्कूल बाय एनएमएमसी which has CBSE board. So, but the biggest challenge is to find good teachers. So, what steps are being taken to resolve this issue? आई थिंक जब ये जो सीबीएसई स्कूल का प्रपोजल है, आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम ओनली वन। मुझे लगता है मैं फर्स्ट कॉर्पोरेटर हूँ। आई एम द फर्स्ट कॉर्पोरेटर हु हैज डिमांडेड टू स्टार्ट द सीबीएसई स्कूल इन माय एरिया। और ये स्कूल के लिए मैं बहुत फाइट किया हूँ। आई फाइट अ लॉट विद यू कैन से दैट एक्स कमिश्नर with Tukaram Munde also. There was a time that I was Munde. Mr. Munde has demanded that school given to the ETC. जो वाशी में जो ETC सेंटर है उसको वो स्कूल दिया जाए। But for people of the Seawoods, I fought with Mr. Munde। और वो जो उनका प्रपोजल था एनएमएमसी में, we rejected it with the help of all the corporators। हमारा कॉर्पोरेटर हमारी वहाँ पे यू कैन से दैट मेजोरिटी थी, तो हमने वो प्रपोजल एनएमसी में उसको हम लोग ने नकार दिया। आई ऑल्सो कन्विंस नाइक सर, बिकॉज नाइक सर इज यू कैन से दैट वेरी मच इमोशनल अबाउट एटीसी सेंटर एंड जो भी बच्चे हैं वहाँ के, जो स्पेशल चाइल्ड्स हम बोलते हैं उनको, उस बारे में वो बहुत इमोशनल है। बट मुझे लगता है कि मेरे यहाँ की जो वहाँ पे तो वो स्कूल ऑलरेडी सेटअप है उनका, वहाँ पे मोर देन इनफ प्लेस वहाँ पे है। बट मेरे यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि 90% जो एरिया है सीवुड्स का 48, 48A, 46 में वो सिडको बिल्डिंग्स है। तो वहाँ पे जो पीपल्स है वो कॉमन पीपल है बहुत। जो फीस है वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की या यू कैन से दिल्ली पब्लिक बोर्ड्स की है, डीएवी की है, वो बहुत ज़्यादा है। तो कॉमन पीपल है उनको अच्छा भी पढ़ना है और उनके पास पैसे भी नहीं है। तो जो बिल्डिंग वहाँ मेरे यहाँ पे थी उसको इंग्लिश मीडियम पहले करने का प्लान था एनएमसी का। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे सीबीएसई होना चाहिए। मैंने प्रपोजल वहाँ पे डाला। फिर आई माई सेल्फ बहुत सारा स्कूल मैंने अप्रोच सो मेनी स्कूल। जब वहाँ पे प्रपोजल बन रहा था उसका, मैं वहाँ पे स्टडी करने के लिए कैसे क्या डालना चाहिए कंडीशन टेंडर में क्या नहीं, उसके लिए भी मैंने बहुत फॉलोअप लिया कमिश्नर के साथ में। और जब ये स्कूल चालू हुआ वहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी एनएमसी में जो चेंज। जैसे आपने पूछा मुझे व्हाट मेजर्स आई हैव टेकन, जो टीचर्स जो आपसे कैलिबर के वो अच्छे टीचर्स मिले उसके लिए क्या मेजर्स लिया। तो सबसे पहले आई इन महासभा ऑफ एनएमसी, जो सभा हमारा होता है जो मंथ में एक बार जनरल मीटिंग जो होती है, in general meeting I raised this issue and I demanded that the teacher uh, uh, which are in the CBSE school, उनका जो क्वालिफिकेशन है और नर्सरी एंड यू कैन से दैट जूनियर सीनियर लेवल, जो नर्सरी लेवल तक है, तो उनके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है 12 क्लास तो होना चाहिए। और दे शुड बी उनका जो स्पोकन लैंग्वेज है वो अप टू द मार्क होना चाहिए। बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। जब नए टीचर भरे हुए थे वहाँ पे उनको इंग्लिश भी बात करने नहीं आती थी। 10th पास थे, 10th पास का क्राइटेरिया था वहाँ पे। तो आई चेंज दिस क्राइटेरिया टोटली। और अलॉन्ग विद दैट फिर फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए भी हमने क्राइटेरिया सेम रखा, जिसको फ्लुएंट इंग्लिश बात करने आता है
जिनका लैंग्वेज अच्छा है, जिनका एजुकेशन हायर है, हम उसी टीचर्स को लेने के लिए आई डिमांडेड टू द कॉरपोरेशन और सक्सीडेड इन दैट ऑल्सो। अभी जो हमारा जो स्कूल है वो ओनली वन स्कूल है जो कोई ट्रस्ट चला रहा है। आकांक्षा फाउंडेशन इज रनिंग दिस स्कूल। मतलब हमारा जो भी स्टाफ है वो एक्सपर्ट स्टाफ है, और आई कैन से कि एनएमएमसी का होके भी वो प्राइवेट है, बट हम लोग फैसिलिटी जो है प्राइवेट की दे रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। That's commendable. Congratulations for that. और थैंक दूसरी यू। बात, आप क्या क्या नया, what new measures are you planning for ward number 108? मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जो मैं 5 साल मुझे कम पड़े हैं, या फिर जैसे आपने बताया पार्किंग मेन इशू जो है, मल्टी स्टोरी लेवल का जो पार्किंग है, दिस इज माय ड्रीम दैट कि वहाँ पे एक वैसा कोई पार्किंग हब बने जहाँ का प्रॉब्लम जो रिजॉल्व हो। ऑल्सो मार्केट, जो मार्केट इशू है, और मेनली बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट हैव एनी प्लॉट फॉर द मार्केट। तो वो मार्केट अगर बन गया, वो एक मेरा फॉलोअप है। और ब्यूटिफिकेशन ऑफ द जो भी हमारे यहाँ का जो एरिया है, क्रिक एरिया है, जो क्रिक जो है हमारे यहाँ सेक्टर 50 को लग के, उसको सागर विहार के जैसा बनाने का एक विजन है। उसके लिए भी मैंने 2016 से लेकर 2020 तक बहुत फाइट किया हुआ है। आई फाइट अ लॉट टू गेट दैट लैंड in the custody of the NMMC so we can develop it. But unfortunately, SHIDCO has a negative approach and some different thought in their mind. So they are not giving us that land. Because of that, all the work has been stopped there. But as a corporator, I think I have taken up all the issues. Along with that, there is my one more vision is there. In on the Palm Beach side, there is a DPS school. From DPS to जो यहाँ के लोग हैं सेक्टर 50, 48, 46, वहां पर जाने के लिए क्रॉस करके जाना पड़ता है रोड। बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए भी एक फ्लाईओवर ब्रिज या फिर कहाँ ऐसा से कुछ कहाँ फुटओवर तक? ब्रिज। कहाँ से कहाँ तक? डीपीएस स्कूल जो है, हाँ, डीपीएस स्कूल से। अंडरग्राउंड। हाँ, अच्छा। डीपीएस स्कूल से सेक्टर 50, ओल्ड 50, वहां तक एक रोड अंडरग्राउंड यू कैन से दैट अंडरग्राउंड या फ्लाईओवर ब्रिज, दोनों में से कोई भी ब्रिज चलेगा। बट उसके लिए भी हम लोगों ने जो हमारा जनरल मीटिंग है वहां पर बहुत बार उसको इश्यू को लिया हुआ है। और मुझे लगता है कि जो लास्ट ईयर जो प्रपोजल बन रहा था उसमें भी उसको ऐड किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो भी चीज आगे होगी। और बहुत सारी चीजें ऐसी है, मुझे लगता है अगर मैंने बता दिया तो मेरा मैनिफेस्टो कोई और चुरा सकता है। इनफैक्ट बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट ओनली कि अभी तो इलेक्शन, एनएमएमसीज इलेक्शन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो आपका क्या मैनिफेस्टो है? व्हाई मिस्टर डोलस अगेन? हाँ, भाई मिस्टर डोलस अगेन ये तो लोग ही बता सकते हैं, बिकॉज जब 2015 में मैं आया था बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे थे। आई tried a lot to change the scenario of this area. I have succeeded in that also. Most of the in area, मतलब पार्किंग हो, ट्रैफिक हो, आई कैन से दैट जो गार्डन है हमारा का उसका ब्यूटिफिकेशन हो, you can say that changes I have made in this region. Mostly along with that ये सब काम तो होते रहते हैं, बट 5 साल मैंने मेरे वार्ड के जो लोग हैं उनका मैंने निजी तौर पे ख्याल रखा हुआ। मतलब हॉस्पिटल का इश्यूज जो है, जो समझो किसी के पास 5 लाख बिल हुआ है, किसी को पैसे भरने को नहीं है, किसी को 2 लाख है, किसको ट्रीटमेंट का कॉस्ट 5 लाख है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे कम से बहुत सारे पेशेंट्स है, बहुत सारे जो मेरे यहाँ के नागरिक है
उनके लिए 5 सालों में उनके साथ में मैं जुड़ा हूँ, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे लगता हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। 99% मुझे लगता है, या फिर कोई एक दो केसेस रहेंगे जिसमें सक्सीड नहीं हो पाया, बट आप कह सकते हैं कि बहुत सारे केसेस जो है, मोर देन 200-300 पीपल को हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल में, तेरना हॉस्पिटल में, डीवाई पाटिल में फ्री ट्रीटमेंट हम लोग ने, मतलब फ्रॉम माई साइड आई हैव ट्राइड लॉट, और आई हैव सक्सीडेड इन दैट ऑल्सो। रहा बात एम्प्लॉयमेंट का, जो मेरे प्रभाग के जो लोग, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी था वहाँ पे पहले, वहाँ पर बहुत सारी बेकारी थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए थे। बहुत सारे लोगों को काम पे लगाना हो, या जॉब देना हो, या अपॉर्चुनिटी देना हो, आई हैव ट्राइड अ लॉट। और मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पे सबको पता है कि बहुत सारी यूथ को वहाँ पे जॉब मिली हुई है with और एफर्ट्स। और स्पोर्ट्स एरिया में भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं। मेरे यहाँ की जो यूथ है वो अच्छी दिशा में जाए, इसके लिए जो भी हाई लेवल का कॉम्पिटिशन्स जो हमारे एरिया में होता है हर साल, उस बारे में भी ध्यान देता हूँ। जो कल्चरल थिंग्स है मेरे एरिया में, जो हर संप्रदाय के लोग जो है, हर जाति के लोग जो है, उनका जो ट्रेडिशन है वो कायम रखने का काम हमने यहाँ पे किया है। और एज अ वार्ड 108 जो है, मतलब इसमें हर जाति के धर्म को साथ में रखने का काम किया हुआ है। कभी भी इन 5 सालों में ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई लोगों के मन में ऐसा कभी कोई चीज नहीं आया कि यार हम लोग अ, 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 इसके साथ में न्याय हो रहा है, इसके साथ में अन्याय हो रहा है। तो एबल टू डू जस्टिस, इसके लिए मैं सेटिस्फाई हूँ। रहा बात, मुझे लगता है कि 5 साल में जितना एवरी कॉर्नर ऑफ द एरिया प्रोटेक्ट करने का मैंने कोशिश किया। फ्लावर बेड बनाना हो, वहाँ पे चैनलिंग फेंसिंग लगाना हो, क्रीक एरिया का डेवलपमेंट हो, डेकोरेटिव लाइट जो है वो सीवुड में, मुझे लगता है नवी मुंबई में सिर्फ वार्ड नंबर 108 में है, और बाशी सेक्टर 17 में जो पहले लगाए हुए थे, उसके बाद में ओनली वार्ड नंबर 108 में। तो मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस डे केयर सेंटर मेरे एरिया में बन चुका है। जो अभी जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट डे केयर सेंटर्स में भेजते हैं, उनका फीस जो है मंथली 10,000, 6,000, 7,000 ऐसी है। बट यहाँ पे हम लोग नॉमिनल 100 रुपीज, 200 रुपीज, और फ्री ऑल्सो, फ्री भी हो सकता है, पता नहीं। तो उसका भी हम लोग ने प्रोविजन करके रखा हुआ है। छिड़कों का तो फाइट लड़ कर रहे हैं हम, और मुझे पता है इन लोगों को बिलीव है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा इसमें। तो मुझे लगता है कि भाई विशाल डोलस इसका तो जवाब पब्लिक देगी, बट एज अ कॉर्पोरेटर आई एम सेटिस्फाई विथ माय वर्क। जो भी चीज किया हुआ है, जो मैंने कमिटमेंट किया है, उससे ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल का काम मैंने। और एक बिल्डिंग जो है मेरे एरिया में स्कूल का, मैंने पास किया हुआ है, उसका भी काम चालू हो जाएगा एक 7-8 दिन में। कहाँ पर? तो ऐसे बहुत न्यू बिल्डिंग, मतलब न्यू प्रोजेक्ट चालू हो रहा है। कहाँ पर है? और कम से कम सेक्टर 50 पे, आई सी। ओल्ड 50, वहाँ ओके। पे प्ले ग्राउंड है। वहाँ पे प्ले ग्राउंड का भी प्लॉट लिया हुआ है, उसका भी डेवलपमेंट का काम अभी 7-7 दिन में चालू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं वो जो ऑन गोइंग है, बहुत सारी चीजें नई है, लोगों को वार्ड में देखने मिली है। जैसे आपका, मुझे मेरा, आई एम फॉर्चुनेट दैट माय वार्ड इज इन सेंटर ऑफ 2 वार्ड्स। तो पब्लिक जो जो आसपास के जो लोग हैं उनको फर्क नजर आता है, हमारे वार्ड में क्या है और बाकी के वार्ड में क्या नहीं है। तो मैं ऐसा, हम लोग वी कैन जज इट वेरी इजीली। तो मुझे लगता है 5 साल में इतनी सारी चीजें हो चुकी है, तो अगले 5 साल में डेफिनेटली एक विजन है, लोगों के लिए कुछ बना हुआ है हमने। और मुझे लगता है कि लोगों की ये तकलीफें मैं दूर कर पाऊंगा। आई एम Thank you कॉन्फिडेंट so इनफ। much. Thank you so much, Mr. Dolas, and we wish you all the best for the upcoming elections. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैम। आई एम वेरी ग्लैड दैट आपने मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का, बातचीत करने का। हमारा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इंटरव्यू के दौरान नहीं बता पाया, बट इलेक्शन का जो एक अदर फेस जो है वो ऐसा है कि लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं।
जो उनके अगर कोई एक इश्यू हम उठाते हैं तो वही इश्यू किसी और को भी उठाना है। तो हम चाहते हैं कि हमारा लोग उनका मैनिफेस्टो ये करे, हम हमारा मैनिफेस्टो बनाएंगे। जब आएगा समय तब सबको पता चल जाएगा आपका मैनिफेस्टो क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।